Hello everyone, my name is Atish Mathur. This is lecture number 9 of the Magna Carta Mains for 2025, a course that covers what is absolutely important for GS Paper 2 for the upcoming mains in 2025. In our previous lecture, lecture number 8, we had finished up until bicameralism and Rajya Sabha. We will pick up the MCN from the previous uploads, which is whip, and then we will pick up delegated legislation and parliamentary committees and finish these three topics in one go. Now let's start. सबसे पहले तो ये MCM नंबर इज 17, आपके नोट्स में 17 ही है. यहाँ पे एरर हो गया ब्लैक बैकग्राउंड के टाइम पे, 17 ही है. Now, first things first, we are discussing whip. Why are we discussing whip is the first question we start with. Two reasons. One, the Vice President of India, who's also the chair of the Rajya Sabha, in January 2025, this year, has given a couple of public speeches. They're all tracked on the tracker as well, wherein he has said, why do you need the whip? The whip effectively uh, prohibits or restricts the way you have to conduct yourself in the house. The second reason is, हमारा जो पॉलिटी वाला जो पार्लियामेंट वाला सेक्शन है, उसमें कभी कभी यूपीएससी बिल्कुल asks very strange things. Whip has never been asked in the mains, and therefore could be a chance that I don't want to take a risk for. So I thought, in a concise manner, let us still prepare whips and their role, because you will anyways replicate it and use it in anti-defection, parliamentary efficiency. We will use it in individuality, role of a parliamentarian. ये use बहुत जगहों पे तो होगा ही होगा. इसको सिंगुलरली भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बात तो वही है. So let us start. My introduction for this has two aspects. One is a historical aspect, the second is a quote based aspect. Historically, this term originates from what is called England and the hunting fields of England, जहाँ पे कहा जाता था there was a person called a whipper in, and that whipper in was supposed to keep stray hounds within the pack. Stray hounds matlab basically a wild animal of a kind. Politically, it was used for the first time by a theorist called Edmund Burke, and Burkean understanding of the role of the parliament, the role of the parliamentarian, is a very interesting school of thought when you study democracy in general. So, the Burkean understanding of parliament. Anyways, he has spoken about whips, and he says whips are basically people who rally to get supporters of the political party. अब ये कहानी क्या है और क्यों है, इसको जरा कॉन्टेक्चुअली समझते हैं. देखो, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनरली 3 टाइप्स के होते हैं. राज्यसभा में है तो शायद वो नॉमिनेटेड हो सकते हैं. मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इट्स द मिरर इमेज. कुछ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब वो अपने दम पे इलेक्शन जीतते हैं, वो किसी पार्टी के टिकट पे नहीं जीतते. तीसरा, जिनको हम पार्टी एमपीज कहते हैं. कहानी यहां की है. हमें पता है that we have divided our country into constituencies, and our electoral laws are very clear. One party will only give one person a ticket for each constituency. और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आज नहीं तो कल इनवेरिएबली एक पार्टी सिस्टम तो बनता ही है. अब वो 2 पार्टी सिस्टम बने, मल्टी पार्टी सिस्टम बने, रीजनल पार्टीज हो, कोएलिशन हो, दैट डज नॉट मैटर. द आइडिया इज दैट अ पार्टी सिस्टम is a necessary outcome
or an inevitable outcome of parliamentary democracy. तो अब उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस टिकट पर पार्टी ने एक इंसान को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। तो अगर वो जीत रहे हैं तो इसका मतलब वो पार्टी की वजह से भी जीत रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके इंडिविजुअल चार्म, क्रेडेंशियल, पर्सनालिटी वो सब अपनी जगह है, बट दे ऑल्सो वन बिकॉज दे हैव व्हाट इज कॉल्ड द बैकिंग ऑफ द पार्टी एज वेल। अब जब ऐसा है then there has to be some loyalty to the party. That is why you have principles of anti-defection law in place to prevent political opportunism. अब आप इलेक्ट होके हाउस में आ जाते हैं। हाउस में हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं और मेंबर्स हैं। अब ये हाउस में जो मेंबर्स हैं या तो वो पार्टी एमपीज होंगे या इंडिपेंडेंट होंगे या नॉमिनेटेड होंगे, डिपेंडिंग ऑन द हाउस। अब इस हाउस में बिल्स, रेसोल्यूशंस, कुछ मोशंस एक्सेट्रा सब काम होंगे। एंड द नेचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया इज सच that the executive in India, the elected executive in India, plays a dominant role in policy making. क्योंकि हमने देखा है कि प्राइवेट मेंबर बिल्स तो ना के बराबर हैं। Now, in a scenario like this, you have the government generally leading legislative direction. और ये भी हमको बहुत क्लियर है कि हाउसेस से ही मिनिस्टर्स बन के आते हैं। एंड इफ इट्स द लोअर हाउस, द मिनिस्टर आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल, अदरवाइज दे आर जनरली अकाउंटेबल। अब वो एक पॉलिसी प्रपोजल, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल लेके आए हैं, तो इसका मतलब इसको कितना एक्सेप्टेंस मिलता है ये दर्शाएगा कि क्या इनके पास हाउस का कॉन्फिडेंस है या नहीं। और इसी कॉन्फ्लिक्ट में यू नीड टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द हाउस, which is why this becomes a classic conflict of party loyalty versus individual integrity. इसी कॉन्फ्लिक्ट के चक्कर में वी हैव एंटी डिफेक्शन लॉ जो आपको पार्टी लॉयल्टी ब्रीच नहीं करने देता। इसका दूसरा है इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस जो कहता है भाई आपको जो करना है आप करो, आपको जो बोलना है बोलो, आप अरेस्ट नहीं होंगे। डिस्क्वालीफाई हो गया या नहीं हो गया ये लोग देख लेंगे, लेकिन आप अरेस्ट नहीं होगे, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और इसी को मैनेज करने के लिए यू हैव विप्स। अब जो हमारे इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पार्लियामेंटेरियन के आर्ग्यूमेंट्स थे इन एंटी डिफेक्शन लॉ, वही आर्ग्यूमेंट्स आपके यहां पे भी लगेंगे विप पे। एंटी डिफेक्शन लॉ का एक कंडीशन क्या था, इफ यू आर वोटिंग अगेंस्ट पार्टी डायरेक्शन। अब ये पार्टी डायरेक्शन इशू कौन कर रहा है, विप ही तो कर रहा है। अब अगर ये पार्टी डायरेक्शन विप इशू कर रहे हैं तो अगर आप विप वायलेट करेंगे तो आप पार्टी डायरेक्शन वायलेट करेंगे। विप के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, नाउन एंड वर्ब आर द सेम थिंग, मतलब द पोस्ट एंड द एक्ट इज द सेम थिंग। तो कॉन्टेक्स्ट यहां से है विप्स का कि अगर फॉर एग्जाम्पल इन द करंट लोकसभा बीजेपी लेड, they bring a bill in the Lok Sabha, you would expect all supporters of the BJP and the BJP alliance in the house in the Lok Sabha to support the bill. चाहे वो बिल में कुछ लिखा भी सही हो या नहीं लिखा हो, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा। दिस इज वाई इट इज अ वेरी क्रिटिकल प्रॉब्लम कि स्टेबिलिटी के चक्कर में आप इंटेग्रिटी तो नहीं गड़बड़ा रहे। It's a beautiful ethical dimension that you can use in paper 4 also. Stability versus integrity. Parliamentary loyalty versus individual thought. Correct?
इसको आप एक प्राइवेट सेक्टर में भी देख सकते हैं कि आप अगर कंपनी में कोई अपना अलग ओपिनियन रखते हैं तो कहीं आपको एंटी कंपनी ना रखा जाए. सेम थिंग. So my first introduction is the historical introduction. My second introduction is a quote-based introduction wherein I've quoted Secretary General, former Secretary General A.D. Achari. He was quoted in the editorials also in January 2025, where he says, it is important for parliamentary democracy. Why? As parties see voting on some matters as how their politics is perceived. सारा खेल परसेप्शन और मेजोरिटी का है. क्योंकि कल को अगर मेजोरिटी पार्टी का लाया हुआ कोई भी बिल लोकसभा में डिफीट होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप हार जाओगे, ये सब नहीं. लेकिन सवाल उठेंगे. क्योंकि वो जो मैच्योरिटी है कि आप अपनी लीडरशिप पे भरोसा करते हो, आप अपने मिनिस्टर्स पे भरोसा करते हो, जरूरी नहीं है कि उनके दिए गए हर लेजिस्लेटिव प्रपोजल पे आपको अग्री करना पड़े. A classic example of this is what happened in England during the Brexit campaign. Theresa May was the Prime Minister of England. Now, based on the referendum, which England passed by a majority of 1%, I think 51% voted to leave the European Union, 49% voted to stay in the European Union. So the British Prime Minister at that time, Theresa May, as the leader of government, presented a plan that this is how we are going to withdraw from the European Union in these many steps. Members of her own political party who were in the House of Commons, in the Lok Sabha equivalent of England at that time, rejected her bill. The opposition thought it was a golden opportunity to try a motion of no confidence because a prime minister's idea has been rejected on the floor of the House. But surprisingly, that idea failed. Surprisingly, the no confidence motion failed, which means members of the political party who had majority in the House of Commons when Theresa May was the Prime Minister believed in her leadership ability, disagreed with her current proposal of Brexit. इसे democratic maturity कहते हैं, which is something that India is to a very large extent genuinely lacking. क्योंकि हमारे यहाँ reasoned, rational, intricate debates on the floor of the parliament नहीं होते. Whether it is the Farm Law issue or the Citizenship Amendment Act issue or the 370 issue. Unfortunately, how it has always been discussed, debated, argued for, argued against, has been on very, very sensational grounds. If you're with us or not with us in the larger context of the nation, you can always have a very academic, a very intricate understanding of the provisions of these things. सारा खेल है कि आप अपने डेमोक्रेटिक चेंबर को परसीव कैसे करते हो, उसको आप समझते कैसे हो. एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू हैव द ऑफिस ऑफ द विप. नाउ कभी भी कहीं पे भी ये विप नाम का शब्द आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा. कहीं भी कभी भी आपको ये कि आपको विप मानना ही मानना है, नहीं मानेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ये कहीं एक लाइन में नहीं मिलेगा. इट इज अंडरस्टूड दैट इफ यू डोंट फॉलो द विप्स डायरेक्शन देन यू आर वायलेटिंग एंटी डिफेक्शन लॉ. खैर, तो क्योंकि ये थोड़ा सा न्यूज में था इसलिए मैं चांस नहीं लेना चाहता. एक छोटा सा डायग्राम दिया है जिसमें देयर आर 3 काइंड्स ऑफ विप्स. जैसे स्कूल में नहीं होता था कि पहले आता था एक डायरी में रिमार्क, फिर आता था एक ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, और फिर आता था कि यू हैव बीन सस्पेंडेड फॉर 3-4 days, 5 days, whatever. और उसके बाद तो खैर एक्सपल्शन या टर्मिनेशन जो भी है. Similarly, you have 1 line, 2 line and 3 line whips. This is in an ascending order of how strictly they have to be followed. So in a 1 line whip, all you have to do is, it is written in 1 line.
द मैक्सिमम डायरेक्शंस दैट यू कैन गिव, इसको 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन इसलिए बोलते हैं कि वो 1 लाइन में लिखा है, 2 लाइन में लिखा है, 3 लाइन में लिखा है। अगर 1 लाइन में लिखा है कि अच्छा बस आ जाना, पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। 2 लाइन कि भाई कल एक इंपॉर्टेंट बिल डिस्कस हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट कमेटी का रिव्यू आया है बिल को लेके। और तीसरा है कि पहुंच जाना और ऐसे ही वोट करना। इसको वायलेट किया, 3 लाइन विप को वायलेट किया टेक्निकली, then you have violated the provisions of the 10th schedule, which is anti-defection law. Now comes what is the status of whip in India. The status of whip in India is anti-defection law recognizes indirectly the office of the whip, कि अगर आप डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेंगे तो आप पार्टी के डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं कर रहे हैं। हमारे रूल्स ऑफ प्रोसीजर में दिया हुआ है कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, उसमें एक मिनिस्टर होते हैं और एक मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं। तो जो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं वो लोकसभा के चीफ गवर्नमेंट विप होते हैं, और जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं वो राज्यसभा के चीफ गवर्नमेंट विप होते हैं। अब आप जैसे मेजोरिटी पार्टी चाहेगी कि मेरे सारे एमपी एक जैसे वोट करें, ऑपोजिशन भी चाहेगी कि मेरे सारे एमपी एक जैसे वोट करें, चाहे उसमें से कुछ एमपी बोले कि नहीं सरकार बात तो सही बोल रही है। इससे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट और निकलता है कि इज द रोल ऑफ द ऑपोजिशन नेसेसरीली डिस्ट्रक्टिव, नेसेसरी नेगेटरी? Is it necessarily something that you always have to disagree with what the current power regime in the country is saying? Why can't you be constructive in nature? मतलब बार बार ऑपोजिशन को ये बोलने की थोड़ी जरूरत है कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम गलत कर रहे हो। Why don't you assist? And that is where true grace and true dignity and true parliamentarianism lies, true statesmanship lies. And that is why you have whips on either sides. एक छोटा सा इंसिडेंट है, हर ऑपोजिशन पार्टी का एक विप होता है। इफ यू हैव एन अलायंस इन द ऑपोजिशन तो फिर वो अलायंस का भी एक सिंगल विप हो सकता है। अगर फॉर्मल अलायंस नहीं है, जो आपने हाउस को सबमिट नहीं किया है, तो हर ऑपोजिशन पार्टी अपने आप का एक विप रख सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवंत मान आई थिंक, जो अभी पंजाब चीफ मिनिस्टर हैं, वो एक टाइम पे आम आदमी पार्टी के सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इन वन ऑफ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। तो ही वॉज द ओनली एमपी एंड ही वॉज द विप ऑफ द आम आदमी पार्टी। तो अपने आप को रोज सुबह चिट्ठी लिखते थे कि डियर सिंह साहब प्लीज वोट लाइक दिस फ्रॉम सिंह साहब। सो द लॉ इज फनियर देन व्हाट इट सीम्स टू बी। खैर एनीवे, अब सवाल ये है, ये सब हम करते हैं तो क्यों करते हैं? व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट? अगर पहली बार आ रहा है तो हमेशा हमें रोल पता होना चाहिए। पहला, it helps you ensure what is called as party discipline. एक तरफ आपकी इंडिविजुअलिटी बिल्कुल सही है, लेकिन उस इंडिविजुअलिटी की आड़ में आप जिस थाली से खा रहे हो उस थाली में छेद नहीं कर सकते। यू कैन बी डिसलॉयल टू द पार्टी। So when the whip directs party members to vote in a certain line, you have to maintain that strategy of the political party. There is a legislative strategy that has gone behind bringing a certain bill at a certain time, and there is a legislative strategy in opposing a bill also, which is why you have to conform to it. अगर पार्टी, अब इसमें यह बात भी है कि अगर पार्टी कोई उस बिल को अपोज कर रही है तो वो इसलिए अपोज कर रही है क्योंकि वो पार्टी के कोर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। अगर वो पार्टी के कोर प्रिंसिपल्स के खिलाफ है और आप उस मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आपके भी कोर प्रिंसिपल्स के खिलाफ हुआ, तो आपको वो बिल अपोज करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Of course, the ground fact remains that just because a whip can be issued for everything does not mean it has to be issued for everything. That is the fundamental dichotomy in the whole setup. Second, जब प्रोविजंस दे रखे हैं that if you are absent beyond a certain amount of time, ये पिछले 6-8 महीने में न्यूज में भी रहा है, because there has been a member of parliament who has been absent from the house for a prolonged number of days because he was attending some criminal charges against him. Technically, the house can take a call and disqualify the member of parliament from being absent for more than 60 days, technically without giving notice to the house.
And by issuing a second line whip or a third line whip, you can ensure that at least the member of parliament is attending. Why is this important? क्योंकि अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड तक एब्सेंट रहेंगे, then the house has the power to disqualify you. Then you can be removed from being a member of parliament. And if you can be removed from the member of parliament, तो उस political party की majority खत्म हो जाएगी ना. और अगर उस political party की majority खत्म हो जाएगी या numbers कम हो जाएंगे, तो पूरा parliamentary stability जो है वो distort हो जाएगी. तीसरा, काउंटिंग ऑफ वोट्स. कोई बिल है जो एक बहुत ही क्लोज कॉल पे बिल है कि पता नहीं ये इस तरफ जा सकता है, उस तरफ जा सकता है, अगर मैंने खुला छोड़ दिया तो, टू इंश्योर अ मिनिमम नंबर ऑफ वोट काउंट फॉर द बिल, ताकि ये पास हो जाए या व्हाटएवर द केस माइट बी, यू रिक्वायर द विप. फोर्थ, very very important, it is also he or she is also a communication link. अब देखो, हाउसेज में लीडर ऑफ गवर्नमेंट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, द विप्स आर ऑल्सो असिस्टेड बाय अ फ्यू डिप्टी मिनिस्टर्स हियर और देयर. जो लेजिस्लेटिव स्ट्रैटेजी इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव से बन के आ रही है, आप वो मिनिस्टर से ब्रीफ में बात तो करोगे ना. whether it is the finance minister during the budget or any minister who's introducing a specific legislation on the floor of the house during a specific time, or if the prime minister is the leader of government, because the prime minister is a member of that house, then you will keep briefing the prime minister कि देखो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये बात है, ये ग्रुप है, इनको ये ऑब्जेक्शंस है, हमने इसको ऐसे सेटल किया है, हम उनको ऐसे बात कर रहे हैं. It's a very important link of communication between the elected executive and the members of parliament on the floor of the house. क्योंकि members of parliament फिर आके उठ के बोलेंगे कि आप भी बिल लाए, हमसे पूछा, हमसे बात करी, हमसे एक बार भी आपने कहा कि ये सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं. क्या पता उस बिल से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इंपैक्ट पड़े, हमारे वोटर बेस पे इंपैक्ट पड़े. हमें तो अपनी शक्ल अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके दिखानी है. Then how do we ensure what we're doing is right or what we're doing is wrong? The fifth point is managing parliamentary business. बहुत सारे काम हैं, रेसोल्यूशंस हैं, पेपर्स हैं, रिप्लाईज एक बार गो थ्रू करने की हम ऑफिशियली क्या दे रहे हैं, क्वेश्चंस कौन किसको पूछेगा, असिस्ट करना है कि अच्छा किस ऑर्डर में हमारे अगर कोई डिबेट होनी है, स्पीकर ने कहा है कि अच्छा इस पे हम शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन करेंगे, इसमें हाफ एन आवर डिस्कशन करेंगे, तो हम असिस्ट करते हैं सेक्रेटेरिएट को कि अच्छा हमारी पॉलिटिकल पार्टी से ये 4-5 लोग जाएंगे. दैट इज द रोल. एंड देन टेक्निकली ग्राउंड पे तो आप है ना, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से तो आप बात कर रहे हैं ना. एंड देयर इज अ वेरी गुड चांस द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में फील डिसग्रंटल्ड, नॉट वेरी हैप्पी, डिसकंटेंट कि आप, हम मिलना चाह रहे थे मंत्री जी से, हम मिल नहीं पाए, हमको इस पार्लियामेंट्री कमेटी में क्यों नहीं आपने हमको अपॉइंट किया, या आप हमसे क्यों नहीं डिस्कस करना चाहते, आप हमसे क्यों नहीं बात करते, हमारा ये प्रपोजल पेंडिंग है. There could be 10 other reasons why there's a very good chance the members of parliament can, turn their tables. Very, very possible. Which is why what one has to do is always speak to them at reasonable amounts of time. कि भाई सब ठीक है ना? Are you keeping all right? कोई दिक्कत हो तो बता दो, कल ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे कैंप में दिख जाओ. And that is how you treat people well. इसका कितना अच्छा एग्जाम्पल है दैट द लीडरशिप शुड ऑलवेज बी इन टच विद देयर एम्प्लॉइज. इफ योर एम्प्लॉइज आर अनहैप्पी, दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी फॉर देम टू जंप शिप. अट्रिशन रेट्स कॉर्पोरेट्स में, स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर और खासकर हमारे टेक सेक्टर में इतना हाई क्यों है? क्योंकि सब दुखी हैं, इनवेरिएबली सब दुखी हैं, बिकॉज लीडरशिप अपने लोगों से बात नहीं करता. दिस इज द प्राइमरी रीजन. इसको आप एथिक्स में और भी जगह यूज कर सकते हो. साइंस ऑफ गुड लीडरशिप, दैट अ गुड whip is not just about managing the expectations of the party.
It is also about managing the expectations of the representatives of the party who've also won an election and are as much a member of parliament as anybody else is. And then कभी हमने वार्निंग इशू करनी है, कभी हमें एक उनसे अपॉलॉजी इशू करवानी है कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो देखो एंटी डिफेक्शन की कंप्लेंट हम भी डाल सकते हैं. The consequences of not complying, the whip has to do the hard talk. And finally, कई बार जब इंटरनल डिसेंट होता है, डिसकंटेंटमेंट होती है, then what you have to do under all circumstances is manage your crisis. कि चलो कल का कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लग गया है, एक्सेप्ट हो गया, स्पीकर ने adjourn कर दिया, बोला कल हम इस पे वोट करेंगे. Then you have to move heaven and hell to make sure that you are defending no confidence on the floor of the house. So the role of the whip becomes even more important in a coalition government. The role of the whip is even more important in a federal parliamentary system because your nature of interests may vary. The role of the whip is even more important in a bicameral national parliament because your methods of representation are so diverse. तो इसको लेके हमारे कुछ इश्यूज हैं, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं और हमें क्या करना चाहिए, छोटा छोटा एक बार में समझ लेते हैं. So the first issue that we generally understand when we understand what are called whips. पहला है the whole individuality argument. The critics who generally question the office of the whip कि आप एक लॉ मेकर की इंडिपेंडेंस, फ्रीडम ऑफ स्पीच आप ये कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो. आप कह रहे हो कि भैया एक तो पार्टी का टिकट हमने दिया आपको, you won an election because we gave you a party ticket, otherwise you had no chance of winning it, which is why you have to listen to everything that we say from the point go. This is one of the reasons why we did not choose presidential democracy as a format to begin with, because presidential elections are generally identity and ideological driven elections. Parliamentary elections are generally supposed to be idea or ideological elections. When you start contesting parliamentary elections with a tinge of presidential one-manship, it distorts the idea of parliamentary democracy. That is the fundamental problem. एक parliamentary democracy एक विचारों की लड़ाई है, उसमें कोई हीरो नहीं होता. प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की ये हमारे प्रेसिडेंट होंगे तो जो ये सही कह रहे हैं क्या आप इनसे अग्री करते हैं या नहीं करते. In a parliamentary democracy, it has always been about celebrating grassroots representation. So then the members of parliament feel कि भाई हमने क्योंकि तुम्हारा पार्टी का टिकट दिया है तो इसका कर्ज हमें अपने 5 साल तक चुकाना पड़ेगा. We have been forced into servility is what the larger point is. 2, it seems to fundamentally be undemocratic in nature. आप at the end of the day are restricting the way somebody can vote. Look at the hypocrisy. एक तरफ आप पावर्स और प्रिविलेजेस में कह रहे हो, एक तरफ आप पावर्स और प्रिविलेजेस में कह रहे हो कि देखो you have the absolute freedom to vote however you want to, no questions asked. Absolutely no questions asked. We are constitutionally guaranteeing you that nothing is going to happen to you because you voted in a certain way. And on the other hand, you are restricting a person's ability to vote by issuing a whip. This inherent hypocritical contradiction undermines parliamentary democracy in a country as diverse as India. That is the fundamental idea. So whip, powers and privileges, anti-defection law, they're all in the larger universe of freedom of speech and expression. That is the fundamental idea. The third issue, as we understand it to be, is abuse of power. Sam, Dam, Dand, Bhed.
Do whatever it takes, no matter whether it is right or wrong, but do whatever it takes. So whips have always been known, there have been several instances, convince करना और coerce करने में जमीन आसमान का फर्क है. If you're coercing somebody to act in a certain way without understanding what their true reservations are, what their true inhibitions are, फिर तो आप पूरा सिस्टम का ही मजाक उड़ा रहे हो. कोअर्शन, थ्रेड, ब्लैकमेल, उससे क्या होता है? पार्टी मोराल अंदर से खोखला होने लगता है. एंड दिस देयरफॉर लीड्स टू फैक्शनलिज्म एंड इंटरनल पार्टी डिवाइड्स. जब लीडरशिप चेंजेस होते हैं, पार्टी में छोटे छोटे ऐसे राइवलरी ग्रुप बनने लगते हैं. इट देन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग द एंटायर प्रोसेस. एंड देन आप क्या विप इशू कर रहे हो, किस बेसिस पे कर रहे हो, क्या कर रहे हो तो खैर इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, बट आप क्यों कर रहे हो, आप आपकी रीजनिंग क्या है, आपने किससे कंसल्ट करके ये डिसाइड किया, ये तो डिटेल्स अवेलेबल है ही नहीं. दे आर ऑफन वेरी सीक्रेटिव इन नेचर. Even if you can see what whips have been issued, public awareness on whips are zero. So they don't understand why their MPs are voting in a certain way. And this ultimately leads to what is called over-centralization. Over-centralization means the same argument that we used in anti-defection law कि पार्टी के कुछ सीनियर लीडर्स हैं जो इस पूरे इकोसिस्टम को बिल्कुल कंट्रोल में लेके कर रहे हैं, कि सारे डिसीजंस कुछ लोगों के बेसिस पे हो रहे हैं, जो वो इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का आर्ग्यूमेंट है जो हम इलेक्शंस में थोड़े टाइम पे करेंगे, व्हिच इज द बेसिक इशू. इफ यू लुक एट सम बेस्ट प्रैक्टिसेस, यूके में अगर आप विप डिफाई करते हो तो एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम की कोई चीज तो है नहीं, तो आपको इंडिपेंडेंट एमपी बना देते हैं, आपको पार्टी से डिस्टेंस कर देते हैं. यूएस में विप का सिस्टम इंटरनल पार्टी डिसिप्लिन के लिए, हाउस पे नहीं है. इट इज लार्जली टू स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव स्ट्रेटेजी. ऑस्ट्रेलिया हैज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉन्शियंस वोट्स, कि यार ये मेरा ईमान इजाजत नहीं देगा इस बिल पे मुझे हाँ बोलने के लिए, तो ना मैं हाँ बोलूंगा ना तो मैं ना बोलूंगा, मेरे को बस छोड़ दो आप. Because in India, even if there's a 3-line whip that asks you to vote no and you abstain, or asks you to vote yes and you abstain, which means you don't vote, abstention is also a violation of a 3-line whip. तो इसके solutions क्या है? Exactly आप कितने whip को कितने extent तक use कर सकते हो उसको codify करो. मनीष तिवारी का एक प्राइवेट मेंबर बिल भी था, 170th लॉ कमीशन ने भी कहा है. दूसरा, आप लेजिस्लेटिव इश्यूज को प्रायोरिटाइज करो. Anything which has an impact on the confidence of the government in the house, that you can always have a tightened grip over. तीसरा, इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करो. सेकेंड एआरसी यही बोलती है. डिसकंटेंटमेंट इसलिए है ना कि लोग आपस में एक दूसरे से बात नहीं करते. And if that is the primary concern, then you can solve it in their own right, in their own manner, in their own ecosystem. Fourth, आप क्यों विप इशू कर रहे हो, what are your reasons behind it, should be publicly and more happily disclosed. And finally, आपका जो ये एंटी डिफेक्शन लॉ है जो आपको सिर्फ विप ना फॉलो करने के लिए डिस्क्वालीफाई कर सकता है, ऐसे लॉ को चेंज करो. दिस इज द बेसिक आइडिया. एंड आप ये कोई जिसको कहते हैं हम फ्रोजन आइडिया नहीं है. दिस हैज टू बी रिव्यूड पीरियोडिकली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आज जो आपको लेजिस्लेटिवली इंपॉर्टेंट लग रहा है शायद 10 साल बाद नहीं लगे, शायद 20 साल बाद एन इन्वायरमेंटल लॉ will become a matter of life and death, as it should have become already, but unfortunately we have better things to think about in our heads. And that is why my concluding statements for as far as the whip is concerned is this. आप इसको contextualize करो कि
75 साल हो गए हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को. इंडिया कंप्लीट्स 75 years of parliamentary democracy. That's not a joke. We are a political experiment that everybody in the world, including Winston Churchill, thought is going to last a few years. We've been more politically stable than our imperial counterparts who thought we would not survive. So as we evolve and celebrate more than 75 years of parliamentary democracy, it is time to imagine and rethink what the role of the whip is. क्या whip एक controlling authority है? जैसे हम बड़े होते हैं तो हम कहते हैं your parents are no longer your guardians, they are your friends. Similarly, a whip is not supposed to be your guardian, it's supposed to be a tool of coordination. Not supposed to be an enforcer of silence, but an enabler of responsible freedom. अगर आपके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड हैं किसी बिल को सपोर्ट नहीं करने के लिए तो हम समझेंगे, वी अंडरस्टैंड इट. लेकिन आप मजे में, फर्जी में, किसी और की इन्फ्लुएंस में आके कह रहे हो नहीं 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 हम तो बाप नहीं बिल पास नहीं होने, वो गलत बात है. Because when discipline aligns with dialogue and loyalty works hand in hand with liberty, democracy does not fracture, democracy flourishes. Irshad. So this is the role of the whip. इसको हम एंटी डिफेक्शन में यूज करेंगे, पावर्स एंड प्रिविलेजेस में यूज करेंगे, इसको हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में यूज करेंगे, इसको हम रोल ऑफ पार्लियामेंटेरियन में यूज करेंगे, इसको हम क्वालिटी ऑफ डिबेट्स एंड डिस्कशंस में यूज करेंगे. इसके यूज केसेस बहुत है. दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई पार्लियामेंट्री कमिटीज मेक सेंस, क्योंकि वहां ना एंटी डिफेक्शन लगता है ना वहां विप विप कोई कर सकता है. True inter and intra-party democracy can be highlighted through parliamentary committees, which is the next topic for the day. इसलिए मैंने इसको एक लाइन में रखा था ताकि आपको कनेक्ट समझ में आए. हम खेल उसी यूनिवर्स में रहे हैं. वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द सेम लार्जर प्रॉब्लम्स. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, which is delegated legislation followed by parliamentary committees. So let's begin. You can open Wayne's concise note number 18 and we will start. Now we move to MCN 18, the next topic, which is delegated legislation. इसको पहले conceptually समझते हैं कि ये एक गलती है या एक नेसेसरी इविल. पहले उसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं. देखिए, we are a parliamentary democracy with a heightened elected executive who drives most of legislative policy in the country. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो लॉ मेकर है वो लेजिस्लेचर ही है, लेकिन इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव ज्यादातर पॉलिसी और लीगल प्रपोजल्स लेके लेजिस्लेचर के पास आते हैं. अब इस इकोसिस्टम में दो तीन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं. एक टाइम की, दूसरी क्वालिटी की, तीसरी की ये कुछ चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, चौथा कुछ ना कुछ डिस्ट्रप्शंस होने लगते हैं आजकल बिना बात के पार्लियामेंट के फ्लोर पे. कहीं ना कहीं आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स जो हैं वो बहुत ही ओपन एंडेड, बहुत ही ऑर्गेनिक हो सकती है, बहुत ही फास्ट मूविंग हो सकती है, और यहाँ पे जो पेस ऑफ चेंज है वो बहुत स्लो है. लॉ बनाने में, अमेंड करने में महीने साल तो लग ही जाते हैं. तो फिर समझ में आता है कि क्यों ना एक काम करें, लेजिस्लेचर जो है एक ब्रॉड लॉ बनाए और इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो एग्जीक्यूटिव को दे दे और एग्जीक्यूटिव रूल्स बनाए. अब ये ढंग से किया तो ये अच्छी बात है, नहीं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेके फंडामेंटल इशू तो है ही है.
इसका इम्पैक्ट फेडरलिज्म पे भी बढ़ सकता है, जैसे ये अभी न्यूज में जिस वजह से रहा है उसकी वजह से रहा है। तो इसको समझना है कि इस मॉडर्न रियलिटी में इसको कितने अच्छे से, कितने ढंग से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने आपको 3 टाइप के दिए हैं। पहला इंट्रोडक्शन है करंट अफेयर्स का। बेसिकली अभी रिसेंटली यूजीसी ने कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज करे हैं ऑन सर्टन प्रोसीजर्स, सर्टन इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू यूनिवर्सिटीज। अब ये जो ड्राफ्ट रेगुलेशंस हैं टेक्निकली ये रूल्स के अंडर में आते हैं। इसके साथ 2 प्रॉब्लम है। पहला कि क्या यूजीसी एक्ट आपको ये करने की इजाजत देता है, और दूसरा जो स्टेट यूनिवर्सिटीज अपने अपने हिसाब से अपने लॉज बनाती हैं अंडर द ब्रॉड सरकमफ्रेंस सेटअप बाय द यूजीसी एक्ट, क्या ये इसको कॉन्ट्रडिक्ट तो नहीं करता? क्योंकि यूजीसी एक सेंट्रल बॉडी है और एक स्टेट बॉडी है। तो इस सिंगल डेवलपमेंट से 2 चीजों की प्रॉब्लम है। पहला पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरा फेडरलिज्म, तो इसको हम वहां पे भी रिसाइकल करेंगे। सेकेंड इंट्रोडक्शन इज अ कोर्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन, जस्टिस पीबी मुखर्जी रिटायर्ड, वो कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन is an excuse for the legislature, a shield for the executors, and a provocation for the constitutional jurist कि आपने ये किया तो कैसे किया। हमारे लॉ में एक there's a branch of law called administrative law, and jurisprudence on delegated legislation is one of the most important components of what is called administrative law. अब ये इसके अलावा भी मुझे क्यों लगता है एग्जाम में इंपॉर्टेंट है? एक तो करंट अफेयर्स की वजह से, दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जुडिशियल लेजिस्लेशन एंड द पीआईएल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन आस्क्ड। अब जुडिशियल लेजिस्लेशन भी तो एक तरह से जुडिशरी कर रही है लेजिस्लेचर का काम, यहां एग्जीक्यूटिव कर रहा है लेजिस्लेचर का काम। तो अगर विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान जुडिशियल लेजिस्लेशन है तो फिर यूजीसी रूल्स आल्सो इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो कितने हद तक दोनों में से चीजें सही हैं या नहीं है, इसको हमें समझना है। टू स्टार्ट विद मैंने आपको 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, तीनों डायग्राम्स को हम एक बार समझ लेते हैं। पहला, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन किस किस टाइप के होते हैं, what are the broad types of what is generally called delegated legislation। सबसे पहले रूल्स, रेगुलेशंस, बायलॉज, नोटिफिकेशंस, ऑर्डर्स या स्कीम्स की भी कई बार गाइडलाइंस निकलती हैं। रूल्स क्या होता है? रूल्स आर जनरली क्रिएटेड अंडर अ स्टैट्यूट। रेगुलेशंस क्या होते हैं? रेगुलेशंस आर जनरली क्रिएटेड बाय अ statutory authority to implement a policy. For example, ट्राई regulations निकालती है, Mines and Minerals Act, Mines and Minerals Rules. Then you have bylaws. बाईलॉज का एक एग्जाम्पल हो सकता है जैसे म्यूनिसिपैलिटीज या पंचायत लोकल रेफरेंस के लिए अगर कुछ कायदे कानून बनाए। देन यू ऑल्सो हैव नोटिफिकेशन। नाउ टेक्निकली नोटिफिकेशन इज, आप अगर कोई प्रोविजन को इफेक्ट में लाना चाह रहे हो, उसको कह रहे हो कि आज से ये लगेगा, या आप किसी चीज की एप्लीकेशन एक्सटेंड करना चाह रहे हो। इवन ऑर्डर्स एंड डायरेक्टिव्स की एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शंस दैट कैन हैव अ बाइंडिंग फोर्स। स्कीम्स के जो गाइडलाइंस आते हैं जैसे एमजी नरेगा की गाइडलाइंस वगैरह आ गए। सो टेक्निकली दीज आर ऑल लार्जर फॉर्म्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। एक तो तरीका हो गया इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, दूसरा हो गया इन टर्म्स ऑफ देयर पर्पस, ये क्या करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सप्लीमेंट्री डेलीगेटेड लेजिस्लेशन हुज जॉब इज कि जैसे मोटर व्हीकल्स एक्ट है, मोटर व्हीकल रूल्स हैं, तो वो हेलमेट के डायमेंशंस क्या होने चाहिए,
आपके जो कार में एक्सेसरीज या बाइक में एक्सेसरीज लगा रहे हैं तो क्या परमिटेड होना चाहिए या नहीं, टू फिल इन द गैप्स इन प्रोसीजरल डिटेल्स इज सप्लीमेंट्री। दूसरा, एक्सटेंशन या इंक्लूजन। अगर आप लॉ को कोई नए सब्जेक्ट में या नए एरिया में अप्लाई करना चाहते हो कि ये लॉ अब यहाँ पे भी लगेगा या इस एरिया में भी लगेगा, सो दैट कुड बी वन रीजन। तीसरा है एग्जेम्पशन, कि आप अगर कहते हो कि फॉर इंस्टेंस ये एक क्रिमिनल लॉ है जिस पे ये क्राइम है, लेकिन ये इन लोगों पे ये लॉ नहीं लगेगा या इन लोगों पे ये एग्जेम्पशन है, तो कई बार आप रूल से बनाते हो, कई बार आप नोटिफिकेशन से बनाते हो, विच इज़ फॉर एग्जाम्पल, हम खैर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में तो हमने प्रॉपर लॉ ही बनाया है, बट हम कई बार इसको हम टैक्स के पर्पसेज में एग्जेम्पशंस में बहुत देखते हैं, कस्टम्स पेनल्टीज में बहुत देखते हैं। एंड देन यू ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड मॉडिफिकेशन। नाउ मॉडिफिकेशन इज व्हेन यू आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लार्जर स्टैट्यूट है, लेकिन उसको अगर हमें लोकली लगाना है, तो कई बार क्या होता है कि हम नोटिफिकेशन से, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से, रूल से उसको लोकली कस्टमाइज कर देते हैं। ये आपको प्रॉपर्टी या रेंटल रिलेटेड लॉज में बहुत बार देखने को मिलता है, अगर वो सेंट्रल लॉ लोकली अप्लाई हो रहा हो, उसमें स्टेट लॉ नहीं हो तो। देन यू हैव समथिंग बेस्ड ऑन डिस्क्रेशन, इसको हम कंडीशनल या फिर कंटिंजेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी कहते हैं। कंडीशनल या सर्कमस्टेंशियल या कंटिंजेंट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब है कि ये लॉ तभी इफेक्ट में आएगा अगर ये नोटिफिकेशन आ जाए तो, अगर ये ऑथराइज हो जाए तो, अगर ये कंडीशंस एग्जीक्यूटिव फुलफिल कर दे तो ये लॉ नोटिफाई होगा। एंड देन यू हैव बेस्ड ऑन अथॉरिटी। अब बेस्ड ऑन अथॉरिटी का क्या मतलब हुआ कि या तो लेजिस्लेचर ने एक मिनिस्ट्री को कहा कि आप इस लॉ पे रूल्स बना दो, दिस इज लेयर वन। लेयर टू इज सब डेलीगेशन, जब वो मिनिस्ट्री किसी और को डेलीगेट करती है, कोई बॉडी हो सकती है, कोई और अथॉरिटी हो सकती है, कोई और ऑफिस हो सकता है, बोलते कि आप अपने हिसाब से यहां रूल्स बना देना, आप अपने हिसाब से यहां ऑर्डर्स बना देना। इसको हम सब डेलीगेशन कहते हैं। आपको कोविड में याद होगा एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसमें स्पेसिफिक आपको लॉकडाउन ऑर्डर्स, रिस्ट्रेनिंग मूवमेंट ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जो जिसमें सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, जो आप लोगों की पहली पोस्टिंग होगी, जिसमें आपको एज एन इंसिडेंट कमांडर डेजिग्नेट किया जाता है, वहां पे सब डेलीगेशन जनरली लगता है। क्वेश्चन ये है कि यह सब करने की जरूरत क्यों है, वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इससे क्या होगा। There are 6 very important points, some very very basic points. पहला, प्रेशर ऑन पार्लियामेंट्री टाइम। यहाँ पे हम, जो मैं आपको पार्लियामेंट्री डेटा सेट्स दूंगा, एवरेज नंबर ऑफ डेज, परसेंटेज टाइम टेकन टू पास अ बिल, द परसेंटेज ऑफ टाइम स्पेंट ऑन डिस्कशन, द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज वी डू नॉट हैव अ 12 month पार्लियामेंट। एक तो हम मिलते साल में 3 बार है, और जब हम मिलते भी है तो ऐसा नहीं है कि सारे दिन काम करते हैं। टेक्निकली व्हेन वी सी द पार्लियामेंट्री कैलेंडर, लेजिस्लेटिव बिजनेस इज टेकन अप इन द सेकंड हाफ। नाउ इफ इट इज टेकन अप इन द सेकंड हाफ, दिस मीन्स you are not even sitting for half the time that you are supposed to sit. तो इसलिए क्या होता है, लेजिस्लेचर स्टार्ट्स फॉर्मुलेटिंग जनरल पॉलिसी कि प्रिंसिपली ये सही है, ये गलत है, और इसको इन्फोर्स करने के लिए जो भी आपको टेक्निकल डिटेल्स लगे आप कर लेना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, as we are growing and developing as a society, as a country, as a civilization, as the world, there is a lot more complexity in the kind of laws that are required. अब फॉर एग्जाम्पल इसका सबसे सिंपल, सबसे इफेक्टिव एग्जाम्पल तो आपका आईटी एक्ट और आईटी रूल्स है, जिसमें आप इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज की बात करते हैं, योर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसके लिए हम रूल्स बनाते हैं कि हमारे प्रिंसिपल, फिड्यूशरी, डेटा मैनेजर्स, कंसेंट मैनेजर्स, ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बट टैक्सेशन, साइंस, डिफेंस, हेल्थ,
इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो इतनी नुआंस्ड हैं जिसमें आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज लगेगी। हमारे लेजिस्लेटर्स से ये एक्सपेक्ट करना भी गलत है, और पार्लियामेंट का इस टेक्निकलिटी में इंडल्ज करना भी इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इट्स नॉट सपोज टू बी एन ओवर स्पेशलाइज्ड बॉडी। इसीलिए कई बार कहते हैं दिस इज ऑल्सो वाई पार्लियामेंट्री कमिटीज बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जितना आपको मैग्निफिकेशन करना है, जितना आपको बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट किसी चीज को एनालाइज करना है, तो लेट द कमिटीज डू इट। दे आर द बेस्ट प्लेसेस where you can invite experts also, and they can give you their honest point of view. अब चाहे वो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट हो, इनकम टैक्स का हो, वन नेशन वन इलेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है। इट कुड हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल फैब्रिक ऑफ द कंट्री। तीसरा, इट ऑल्सो अलाउज फॉर अ डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आप लॉ चेंज करने जाएंगे, आप जब भी लॉ चेंज करने जाएंगे, आप हमेशा यू हैव टू गो थ्रू द होल प्रोसेस, द होल 3 स्टेज प्रोसेस, इंट्रोडक्शन, अब उसमें राज्यसभा का इशू हो गया, कोई अमेंडमेंट्स निकल आ गए, कोई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हो गई, तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन दीज माइनर टेक्निकलिटीज therefore become very important. Fourth, when there are uncertain and when there are these emergencies, you can't be waiting for laws to be passed. You need broader laws that allow you to make rules to authorize things. तो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर भी कुछ नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। देन यू ऑल्सो हैव द इशू ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन। आप हर चीज कैसे सोच सकते हो कि यही चलेगा और ऐसे ही होगा? खासकर आप ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, आप ट्रेड रिलेटेड नोटिफिकेशंस में देखोगे। Depending on geopolitics, you would want to restrict trade or promote trade or a class of trade depending. उसके लिए वो रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी, वो रूल्स में ये देखना कि क्या ये चलेगा नहीं चलेगा करके देखते हैं, बिकॉज एवरीथिंग यू कांट नो बिफोर हैंड। One of the greatest challenges of law making is that you never know how the law is going to play out, it is why it is one of the most difficult things to do, is to formulate law. And then it also helps you check implementation efficiency. See, local bodies will always understand local issues better. जो ये टॉप डाउन अप्रोच है लॉ मेकिंग की, it often ignores regional conditions. It often ignores regional discrepancies, regional constraints. तो उसको कस्टमाइज करने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, अदरवाइज द एंटायर थिंग विल बिकम स्लाइटली मोर प्रॉब्लमैटिक। तो अगर ये रीजन है, इस तरह के होते हैं, देन द क्वेश्चन इज ये करते कैसे? देयर हैज टू बी अ पावर टू डू समथिंग, हैज टू बी सोर्स ऑफ इट। कॉन्स्टिट्यूशन में योर डिविजन ऑफ पावर्स, आर्टिकल 13(3)(a, which defines the word law, which is as used article 13(2), mentions most of these words. In fact, अगर आप इसको देखो, article 312, which says if you want to create a new all India service, then somebody will have to have the powers to regulate that all India service. You can trace delegated legislation there also very easily. Now that we've recognized due process of law, you can trace delegated legislation here also, which is where due process of law is a larger instrument to check administrative aggression और इंस्ट्रूमेंटैलिटी फॉर दैट मैटर। तो इन दो वजह से पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स अपने हिसाब से लॉज बना सकते हैं, और उस लॉज को रूल्स में कन्वर्ट करने के लिए मिनिस्ट्री बॉडी अथॉरिटी के पास पावर है। अब इसको चेक करने के हमारे मैकेनिज्म्स क्या है? सबसे पहले तो जुडिशरी उस रूल को स्ट्राइक डाउन कर सकता है। जुडिशरी उस पर्टिकुलर रूल को दो रीजन से स्ट्राइक डाउन कर सकता है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग द वर्ड अल्ट्रा वायस। ये टेक्निकली हम जो द टेक्निकल यूसेज ऑफ द वर्ड अल्ट्रा वायस इज ऑलवेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। हम उसको जनरली भी यूज करते हैं, यूपीएससी में जनरली भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कि एक एक्ट के अंदर एक रूल बनाया, सपोज एक्ट ए में रूल 1 बनाया, उस रूल 1 के साथ दो दिक्कत हो सकती है। या तो वो सब्सटेंटिवली रॉन्ग है, मतलब वो कोई राइट वायलेट कर रहा है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन वायलेट कर रहा है, या कोई डिवीजन ऑफ पावर वायलेट कर रहा है, या फिर वो रूल जिस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है
कोई प्रोसीजरल वायलेशन है, तो आप उस रूल को भी इनवैलिड डिक्लेयर कर सकते हो। आप वो जो एक्ट है या वो सेक्शन है वो वही गलत है, तो उसके अंदर बनाए हुए सारे रूल्स गलत हो जाएंगे। अगर आईटी एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया तो आईटी रूल्स भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो सकते हैं ना, किसने मना किया? विच इज वाई आपने देखा होगा जैसे प्रिजन रूल्स बनते हैं, सो मेनी टाइम्स प्रिजन रूल्स आर चैलेंज्ड, सो मेनी टाइम्स यू वुड हैव सीन अडॉप्शन रूल्स आर चैलेंज्ड। दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई, कि वो अडॉप्शन रूल अगर कहता है कि एक्स कांट अडॉप्ट एंड वाई कैन अडॉप्ट, अगर आपको वो अनफेयर लगता तो आप वही तो चैलेंज करते हो। सो देयर इज सो मच रियल टाइम एप्लीकेशन टू डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। दूसरा, द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन is one of the most powerful and the most potent ways to check subordinate legislation if they really do what they're supposed to do. कि हमने लॉ बनाया और तुमको कहा था लेजिस्लेशन, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, कमिटी को बोला था चेक करो कि ये रूल्स ठीक से बना रहे हैं कि नहीं, टाइमली बना रहे हैं कि नहीं, और जो ये बना रहे हैं वो लॉ की कंफॉर्मिटी में है कि नहीं। कुछ कुछ लॉज में ऐसे रूल्स होते हैं जिनको पार्लियामेंट में आके एक बार प्लेस करना पड़ता है, कुछ कुछ में आपको रेटिफाई करना पड़ता है। दैट इज व्हाई यू वुड हैव हर्ड ऑफ थिंग्स लाइक स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन। ये सब होते इन्हीं पर्पसेस के लिए। थर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल, आप जो लॉ बना रहे हो उसमें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। पहली बात तो अंडर द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर 7 शेड्यूल, डू यू हैव द पावर टू मेक द लॉ और नॉट? टू, the law that you're making, does it very clearly say that X has the power to make rules on ABC? And 3, आप कोई भी essential function delegate नहीं कर सकते, जैसे taxation. Taxation has to always be done legislatively, not extra legislatively, because it is one of the most important functions of a parliamentary democracy to decide the amount of tax that you can impose on people directly or indirectly depending on whatever the circumstances might be. And when you are placing things before the parliament, you are also keeping a check. अब अगर इसको आप दुनिया भर में देखो तो ये कैसे होता है, दिस इज अ वेरी वेरी it's a very conceptual understanding. Delegated legislation is directly proportional to separation of powers. जितना ज्यादा separation of powers होगा उतना कम delegated legislation accepted होगा. Which is why if you see in the US, it is very limited in terms of its application. Why? Because US being a parliamentary democracy will have lesser chances of delegated legislation. Use hai, no doubt, and agencies do make regulations, but they're subject to strict limitation. Whereas UK and India, because we are parliamentary democracies, and so is Australia for that matter, we are able to enable it. In fact, UK, because is a parliamentary supremacy, and therefore you can decide the width of your delegated legislation to whatever extent you would like to. It all depends on how the UK takes it forward. In fact, UK has very famously called some of its a provision called Henry VIII in its general rules of business, कि हर लॉ में एक हेनरी 8 क्लॉज होता है विच इज जनरली यूज्ड, कि अगर आप कोई भी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन बना रहा है तो पार्लियामेंट उसको रिव्यू कर सकती है. They have the powers to make delegated legislation, but the powers are to be checked by the parliament. Similarly, in Australia, the regulations are made, rules are made, but again, very more than US, less than UK for that matter. कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज जो हमें कोट करने के लिए काम आएंगे. पहला, 2 ही केस लॉज मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वैसे लक्ष्मी गुप्ता भी है और 3-4 केसेस और हैं, बट अपने लिए इतने से हो जाएगा. इन रेफरेंस दिल्ली लॉज एक्ट 1912, इसमें कोर्ट ने क्या कहा? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन एज अ नेसेसिटी इन मॉडर्न गवर्नेंस, but firmly established that legislature must retain ultimate control and cannot delegate its core lawmaking powers. Same sentiments are also echoed
by the Committee on Subordinate Legislation. वो भी यही कहते हैं. There have been several reports laid down by them. They also say the same thing कि delegated legislation necessary तो है. You can't get away with it. How well you do it is a question of ethics. It's a question of constitutional morality. ये सारी चीजें ethics, constitutional morality सब में जाके recycle होती है. Then Dwarka Prasad Lakshmi Narayan versus State of UP 1954. Executive cannot use delegated legislation to bypass your essential functions. Now, क्योंकि ये एक theoretical impact question है, तो मैं छोटा छोटा impact on parliamentary democracy and impact on separation of powers. I just want to spend a few minutes and understand this. See, when you look at parliamentary democracy, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? इससे पार्लियामेंट जो है वो जो बड़ी बड़े इश्यूज हैं, लार्जर प्रॉब्लम्स हैं, दे लुक एट थिंग्स प्रिंसिपली एंड इट अलाउज द पार्लियामेंट टू हैंडल सोशल पॉलिसी बेटर. इट इज मोर एफिशिएंट, इट हैज मोर वाइटैलिटी इन इट. प्रॉब्लम क्या है? इसको आप ओवर यूज करेंगे तो आप लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी डाइल्यूट करेंगे. इसको आप ओवर यूज करेंगे तो एग्जीक्यूटिव ओवर रीच होगा, पार्लियामेंट्री सोवेरेनिटी कम होगी. जब पार्लियामेंट के पास ही चांस नहीं है बहुत सारी चीजें डिस्कस करने का, तो पब्लिक स्क्रूटनी और डिबेट कम होगा. एंड देयरफॉर इट कैन बी लीडिंग टू व्हाट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक डेफिसिट. यूके की एक कमिटी थी, कमिटी ऑन मिनिस्टर्स पावर्स, आई रिमेंबर क्लियरली. Parliament would be unable to pass the kind and the quality of legislation in modern times without delegation. And modern public opinion requires delegation. तो इसको बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है. Then you have the impact on separation of powers. देखो, the traditional view है, in a parliamentary democracy, it is blurred because executive is performing a legislative role. Modern, complete separation of powers is practically and realistically not possible. It is pragmatically important कि भाई कुछ चीजें हाथ से छोड़ो, कुछ चीजें you will have to delegate. ये delegation leadership में बहुत अच्छे से use होता है. And therefore what you are seeking is a constitutional balance. While delegation is permitted, essential legislative functions might still always be in the hands of the legislature. देखो, whenever there is a blurring of rules, there is always a risk of authoritarianism. Why? If the executive already has an upper edge in legislative policy, then you will also have an edge in executive rule making. तो पार्लियामेंट तो एक फॉर्मेलिटी हो गई ना. Which is why it then leads to weakening checks and balances. देखो, जुडिशियल रिव्यू भी थोड़ा कदम फूक फूक के चलता है. इतना आसान नहीं है रूल्स को चैलेंज करना, इतना आसान नहीं है एग्जीक्यूटिव डायरेक्शंस को कोर्ट में चैलेंज करना. बिकॉज द एग्जीक्यूटिव विल ऑलवेज स्टैंड अप इन कोर्ट एंड से, आप ही ने तो बोला था सेपरेशन ऑफ पावर्स बेसिक स्ट्रक्चर है, आप लॉ चैलेंज करिए ना. The same argument कि बेसिक स्ट्रक्चर एंड ऑर्डिनरी लॉज. वहां कहने का मतलब यह है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं कर सकता, तो ऑर्डिनरी लॉ क्या चीज है? उसको दूसरा तरीका देखने का यह है कि भाई ऑर्डिनरी लॉ तो छोड़ दो. तो यहां हम कहते हैं कि जब ऑर्डिनरी लॉज कैन नॉट एस्केप जुडिशियल रिव्यू, तो तुम रूल्स एंड रेगुलेशन कैसे छोड़ दोगे? द अदर वे टू लुक एट इट इज, भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इंटरनल. From a UPSC point of view, I'll give you an example. For the several years that we fought several cases against the UPSC in court, it has eventually come down to a very complicated legal question कि भाई UPSC आपके एग्जाम साइकिल में लीगल डॉक्यूमेंट तो एक ही निकालता है, which is called UPSC notification. अब यूपीएससी नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड, आंसर की व्हाटएवर हैज टू बी रिलीज विल हैव टू बी रिलीज्ड आफ्टर द होल सेटअप. या तो नोटिफिकेशन साइलेंट होता है या वो लिखा होता है. तो आप बेसिकली नोटिफिकेशन चैलेंज करते हो कि अच्छा आपकी डिग्री मेंस के टाइम तक आ जानी चाहिए, आपका सर्टिफिकेट इस डेट पे होना चाहिए, आपका एज
इस सो एंड सो डेट से इस सो एंड सो डेट पे होना चाहिए. देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. आपने 1 अगस्त एज क्यों रखी है? आपका डिग्री सर्टिफिकेट मींस के फॉर्म भरते टाइम तक आ जाना चाहिए या मींस के पहले तक क्यों आ जाना चाहिए? किसी का फाइनल ईयर का एग्जाम खत्म हुआ है, यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट डिले करे हैं, तो आपकी सर्टिफिकेट्स की जो डेटलाइन है वो क्या स्पेसिफिक डेटलाइन है, ये क्या सोच के रखी है आपने? आप आंसर की क्यों नहीं निकालते प्री के बाद? आप कट ऑफ क्यों नहीं डिक्लेयर करते? आप स्कोर कार्ड्स क्यों नहीं देते? ये सब चैलेंज करने का एक ही तो सोर्स पॉइंट है, नोटिफिकेशन. एंड नोटिफिकेशन इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट. एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच इज सिवियरली प्रोटेक्टेड फॉर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी. दूसरी तरफ की वो नोटिफिकेशन इटसेल्फ, कैन दिस बी चैलेंज्ड एज लॉ? इट शुड बी. And the arguments have been there on both sides. Obviously, UPSC, the AG's office will always say, no, 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 this is internal, but constitutionally it should be. But it all comes down to separation of powers, does it not? Which is why this is deeper than what it looks. इसलिए judicial control ends up becoming a balancing mechanism. जुडिशियल लेजिस्लेशन अगर एक लीगल नेसेसिटी है तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन भी एक लीगल नेसेसिटी है. आप उसके बिना आज सर्वाइव नहीं कर सकते. नहीं तो आप हर 6 महीने में ट्रैफिक फाइन्स कैसे बढ़ाओगे? आप ड्यूटीज प्रोडक्ट्स पे कैसे चेंज करोगे? आप कुछ प्रोडक्ट्स पे के लाइसेंसेस कैसे रोकोगे, नहीं रोकोगे, कैसे करोगे? बात बात पे लॉ पे थोड़ी जाओगे, बिकॉज द पेस ऑफ लॉ मेकिंग इज वेरी स्लो. Which is why what you have to do in situations like these is have legal reforms. मतलब try to have very clear guidelines. सब कुछ आप देख रहे हो, solutions common है. privileges कोडिफाई करो, डिफेक्शन लॉस को स्ट्रीमलाइन करो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को अच्छे से डिफाइन करो. क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते व्हेन यू आर रिपीलिंग समथिंग, टैक्सेशन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, हर चीज बहुत क्लियर. कहीं तो बताओ. देयर हैव टू बी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स आल्सो. पार्लियामेंट्री कमिटीज हैव टू बी स्ट्रेंथन्ड. रूल्स को भी प्री पब्लिश करो. उस पे भी तो आप पब्लिक डिबेट कर सकते हो, जैसे अभी डेटा प्रोटेक्शन रूल्स में किया था. कंसल्टेशन हर स्टेज पे होना चाहिए. तीसरा, जो ये आप रूल्स बना रहे हो, मेक श्योर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द हाउस आर आल्सो अवेयर. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आर्बिट्ररीनेस आपको हमेशा रूल्स में देखने को मिलेगा, नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा. जैसे मैंने आपको बताया, ultimately in a court when you have to prove a right is violated more than 21 and 19, and please mark my words on this, it is arbitrariness that you're treating people differently without any rationale behind it is what legally sails you through. This is the context. And then your concluding statement, as this should be, become this. The legitimacy therefore lies in the constitutional fidelity, not in convenience. आप ये इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये आपको सही लगता है, इसलिए नहीं क्योंकि ये कन्वीनियंट है. And fidelity to the rule of law, to parliamentary oversight, to the citizens' right to be governed by accountable laws. As India's administrative complexity deepens, the challenge is to wield delegation not as a shortcut, but as a very carefully monitored tool that serves rather than supplants the legislature. It is supposed to assist, not the other way round. That is the principle behind it. तभी करते हैं. US almost has a non-delegation doctrine. And because US has almost a non-delegation doctrine, you can easily look at the relationship between separation of powers and delegated legislation. सब लोग कॉम्प्लेक्सिटी के चक्कर में थोड़ा थोड़ा तो करेंगे, बट आप किस हद तक कर रहे हो वो मैटर करता है.
Then we move to the final topic, which is parliamentary committees. ये important है लेकिन बिल्कुल आसान है. So you can take out your MCN 19 and we'll start with parliamentary committees. Let's continue with our final topic for today, which is parliamentary committees. इसको थोड़ा conceptually पहले समझ लेते हैं कि मामला क्या है. देखो in a parliamentary democracy like ours, for example, which is bicameral, जहाँ लोकसभा और राज्यसभा दोनों हैं, and we have a heightened elected executive which plays a dominant role in leading policy and legislative strategy and action in the houses. There is a concerned conflict. ठीक है. अब यहाँ पे है तो हमारे एमपीज, और काम क्या है हमारे एमपीज का कि भाई लॉज रिव्यू करना, फाइनेंशियल ओवरसाइट देखना, ग्रीवेंसेस को लेके आना, जो भी हैं वो सारी चीज़ें. यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वालिटेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं और कुछ क्वांटिटेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं. जैसे कि भाई टाइम, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पार्लियामेंट्री डिस्ट्रप्शंस, एंटी डिफेक्शन लॉ, विप, 10 तरह की चीज़ें. द फैक्ट दैट वी डोंट हैव अ फिक्स्ड एनुअल कैलेंडर, बहुत सारी चीज़ें. और इसकी वजह से जो एट अ क्वालिटेटिव लेवल एंड एट अ क्वांटिटेटिव लेवल जिस तरह का लेजिस्लेटिव रिव्यू होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ इंट्रा चेक्स एंड बैलेंसेस, जिसके थ्रू आप इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव पे भी खुले हाथ से सवाल पूछ सकते हो या काम में थोड़ा असिस्ट कर सकते हो, यू हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज. तो सारा खेल जो है वो यहां पे आता है. अब फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही कॉमन एरिया है. तो इसको हम करते कैसे हैं? देखो, सबसे पहले कहानी शुरू होती है 2017 से. 2017 में उन्होंने पूछा पब्लिक अकाउंट्स कमिटी. फिर 2018 में पूछा उन्होंने एस्टिमेट्स कमिटी. बोथ ऑफ दीज आर अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल पार्लियामेंट्री कमिटीज. फिर जंप मारा 2021 में पूछा डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज का क्या रोल होता है. और फिर 2023 में पूछा फाइनेंशियल कमिटीज का स्पेसिफिक इंपॉर्टेंस क्या है और ओवरऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज का स्ट्रक्चर क्या है. अब इसको मैं करंट अफेयर्स से लिंक करूं तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पिछले 6 महीने में, 8 महीने में न्यूज में रही है बिकॉज ऑफ देयर ऑब्जर्वेशंस, बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट्स. और पब्लिक अकाउंट्स कमिटी पूछे हुए बहुत टाइम हो गया है. तो 2025 के लिए एक तो पब्लिक अकाउंट्स कमिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट, और दूसरा क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज ऑल्सो बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर 2025. अब इसको करने का तरीका वही है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का है. सबसे पहले यू हैव अ कॉमन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड अ कॉमन सेट ऑफ इश्यूज फॉर ऑल पार्लियामेंट्री कमिटीज. और फिर डीआरएससीज के लिए, फाइनेंशियल कमिटीज के लिए, पब्लिक अकाउंट्स और एस्टिमेट के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स. इससे हमारे आंसर में डेप्थ डाइवर्सिटी का बैलेंस आ जाएगा. यही मैंने आपको आपके नोट्स में करके दिया है. सो लेट्स बिगिन. इंट्रोडक्शन में 2 चीजें. पहला एक कोट बाय फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट which basically talks about this, US Woodrow Wilson.
Woodrow Wilson, for those of you who have PubAd as an optional, will also know he's one of the luminaries of public administration and modern public administration as well. वो कहते हैं कांग्रेस मतलब यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं. वो कहते हैं कांग्रेस इन सेशन इज कांग्रेस ऑन पब्लिक एग्जीबिशन. दिखावट है, दिखा रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज पूरा देश आपकी पार्लियामेंट को देख रहा है. वाइल्स्ट कांग्रेस इन कमिटी रूम्स इज कांग्रेस एट वर्क. कि जो असल में काम होता है वो पार्लियामेंट्री कमिटीज के थ्रू होता है. इसमें आप वो सारे पॉइंट्स विप से लेके सब कुछ यहां पे अप्लाई कर सकते. यूएस में खासकर व्हेन दे हैव क्वेश्चनड टेक सीईओज, जिनको हम टेक ब्रोज कहते हैं, फ्रॉम सुंदर पिचाई टू मार्क जकरबर्ग to Elon Musk, everybody, from questioning nominations for Supreme Court judges who've had a shady past. They have gone above and beyond when it comes to questioning people. Even in the UK, they've questioned owners of large media houses. Some of them have been televised in nature. यहाँ पे आपको थोड़ा फ्री हैंड रखना है, और जितना भी क्रेजी इनोवेशन आपके दिमाग में आए उसको आप जरूर अप्लाई करिए. एक डायग्राम जो मैं चाहूंगा आप ध्यान से इसको देखें और समझें और यूज करें, वो ये है. एक लेजिस्लेटर का रोल क्या है. अगर आपने मेरे प्रीलिम्स के नोट्स देखे हैं तो प्रीलिम्स कंसाइज नोट्स में मैंने ये कॉलम और ये कॉलम पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए भी यूज किया है. 4 बेसिक रूल्स हैं पार्लियामेंटेरियन के. Participating in the house, law making, financial oversight and participating in parliamentary committees. ये 4 बेसिक काम है. क्यों करते हैं ये 4 काम और ये कैसे करते हैं? सवाल पूछ के, डिस्कशन करके, बिल्स पास करके, रेजोल्यूशंस. इन सब में पार्लियामेंट्री कमिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम बन जाता है एक रोल को फुलफिल करने के लिए और इन टूल्स को बेहतर यूज करने के लिए. स्ट्रक्चर क्या है? हमारे पास 2 तरह की कमिटीज हैं, स्टैंडिंग कमिटीज और एडहॉक कमिटीज. स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब यह है कि ये हमेशा रहेंगी, ऑलमोस्ट ऑन अ ईयरली बेसिस या 2 साल में कभी कभी इनका कॉम्पोजिशन चेंज होगा, विच इज इटसेल्फ अ प्रॉब्लम, लेकिन ये कमिटी एज इट इज हमेशा रहेगी. एडहॉक कमिटी का मतलब है काम खत्म, कमिटी खत्म. It can be used for a specific bill which is pending और a specific issue, जैसे बोफोर्स के लिए था. और जो सेकेंड इंट्रोडक्शन मैंने दिया है आपको वो इसी बेसिस पे है कि the one nation one election bill has been referred to a joint parliamentary committee. आप जनरली देखेंगे कोएलिशन गवर्नमेंट्स में पार्लियामेंट्री कमिटीज का रोल हल्का सा ज्यादा होता है, which is also an inside driven introduction that you can write. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके 5 बेसिक पॉइंट्स हैं. पहला, इट इनहांसेस योर एफिशिएंसी. जब आप एक क्लोज्ड रूम में, जिस पे ना कोई पब्लिक इंटरफेरेंस है, ना इस पे आप पे कोई सवाल उठा रहा है कि आपका ये ओपिनियन क्यों है, आप जितने डेप्थ में, जितने डिटेल में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं. इससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन इनेबल होता है. कोई एंटी डिफेक्शन नहीं, कोई विप नहीं, कोई पार्टी लॉयल्टी नहीं. आप यहाँ इंटर पार्टी, इंट्रा पार्टी, हर तरह के इक्वेशंस को आप लिफ्ट कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं. एंड जब आप इस डिटेल में चीज़ों को एनालाइज करते हैं तो एक तरह से आप यू बिकम द ट्रू आईज एंड ईयर्स ऑफ द पब्लिक इन द पॉलिसी मेकिंग इन जनरल. एंड चौथा, आप सिर्फ अपने लेवल पे स्पेशलाइज्ड डिस्कशन नहीं कर रहे, आप बाहर से भी एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं. अगर सिविल एविएशन की कमेटी है तो सिविल एविएशन एक्सपर्ट्स बुला सकते हैं. there's a very good chance, अगर आप चाहें, for example, the most tragic incident that has happened in Gujarat when an Air India flight going from Ahmedabad to Gatwick crashed within 1 minute of taking off, causing irreparable damage to life and property. तो the larger question arises, are we doing enough for civil aviation safety?
what kind of liability? Of course, we have the Montreal Protocol, and the the aircraft manufacturer will have a certain responsibility. But how do you make sure this doesn't happen again? Can we look into aviation security independently in a focused manner? इस तरह से एग्जाम्पल बना सकते हैं आप. तो ये रीजन है कि क्यों इंपॉर्टेंट जनरली है. अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा क्या हो गया है कि इनकी इंपॉर्टेंस और बढ़ गई है? ग्रोइंग लेजिस्लेटिव बर्डन. 1991 के बाद, because we've opened markets, so we have to regulate more, we have to expand more, therefore we have to legalize and delegalize a lot of things. So the demand for laws has also increased. Second, धीरे धीरे द इसमें हम वो डेटा सेट डालेंगे जो मैं आपको दूंगा कि एवरेज नंबर ऑफ टाइम स्पेंट ऑन अ बिल. जब फ्लोर पे डिबेट्स का टाइम कम हो रहा है तो ऑटोमेटिकली कहीं तो डिस्कशन हो. तीसरा, we have changed the nature of government schemes, but they are still there. Ayushman Bharat is the world's largest health sponsored program. PM MG Narega is the world's largest food for work program. We have a massive developmental welfare budget. तो भाई काम ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा है? इज इट रियली वर्किंग, नॉट वर्किंग? गवर्नमेंट तो कहेगी वर्किंग है, ऑपोजिशन तो हमेशा कहेगा नॉट वर्किंग है. व्हाट इज द रियलिटी? That is why you would require somebody which has representation across the board to make you understand that. And चौथा, क्योंकि generally opposition has become weaker, it has led to lesser constructive debates on the floor of the house. तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, इसलिए ये और भी ज्यादा रेलिवेंट हो गया है. कैसी भी कमिटी हो, देयर आर सम जनरल इश्यूज दैट स्टिल एग्जिस्ट. वो जनरल इश्यूज क्या क्या हैं भाई? पहला, लो रेफरल रेट. दिस आर वेरी कॉमन पॉइंट्स. आप बिल्स ही नहीं रेफर कर रहे. 16% ऑफ बिल्स वर रेफर्ड टू इन द लास्ट 17th लोकसभा. दूसरा, कमेटी बना देते हैं, लोग आते नहीं है. तीसरा, मोस्ट ऑफ दीज कमिटीज आर कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर 1 year. दिस इज अ स्टैंडर्डाइज्ड आर्ग्यूमेंट. आप ऑन एन एवरेज यू आर द कलेक्टर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट फॉर लेस देन 2 years. तो जब तक आप डिस्ट्रिक्ट को समझते हो, डिस्ट्रिक्ट आपको समझता है, तब तक आपका निकलने का टाइम आ जाता है. फोर्थ, लैक ऑफ एक्सपर्टीज. या तो बाहर से आप एक्सपर्ट्स बुलाएंगे. हमारे एमपीज के पास भी टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, डिस्पाइट मोस्ट ऑफ देम बीइंग ग्रेजुएट. फिफ्थ, आप उम्मीद करते हो कि आप पार्टी के हिसाब से काम नहीं करोगे कमेटी में, लेकिन अब तब भी करते हो कि भाई आगे चल के जवाब देना है. सिक्स्थ, आप जो भी रेकमेंड करते हो वो बाइंडिंग नहीं होता है. वो एक्सेप्ट कर ले या ना कर ले, गवर्नमेंट की मंजूरी है. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चक्कर में वो करते हैं, पर बहुत कमिटीज में वो नहीं करते. एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज विल रिक्वायर अ मैसिव रिसोर्स बेस. अब फॉर एग्जाम्पल, कमिटी ऑन लेट अस से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है. हमारे पास कितने सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, महारत्ना, मिनी रत्ना, ऑल दैट एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, नवरत्ना. उनको रिव्यू करने के लिए भाई कहीं ना कहीं तो you would require staff, research assistants, stenographers, money, travel opportunities to go and look at things on the ground. या तो हम अब्यूज करते हैं रिसोर्सेस को, या हम उसको ठीक से यूज नहीं करते. एंड दैट इज वाई टू सपोर्ट दिस वी हैव सम जनरल डेटा सेट्स जो हम यूज कर सकते हैं कि भाई एवरेज अटेंडेंस 49% है, 16% ऑफ बिल्स आर ओनली रेफर्ड. Although PAC recommendations are about 180 per year, about 80% are recommended, are accepted. Variation बहुत है बाकी committees में. Time generally लगता है. 50% of the reports are presented between 115 days. Joint committee जैसे for example जो डेटा प्रोटेक्शन बिल में श्री कृष्णा कमेटी की बात रेफर किया था, they took 78 meetings for about 2 years to give you a proposal. इतना तो मुश्किल नहीं होना चाहिए. Can't take more than the law required, right? मतलब लॉ बनाने में अगर x टाइम लगा है तो रिव्यू करने के लिए x माइनस सम टाइम लगना चाहिए ना. सो दिस इज योर जनरल एस्पेक्ट. फिर यू गो स्पेशलाइज्ड एंड देन यू से भाई डीआरएससीज के लिए खास बात क्या है, डीआरएससीज क्यों इंपॉर्टेंट है.
departmentally related standing committees are extraordinary in their own right. आपने सब्जेक्ट वाइज जितना हो सकता था, आपने सब्जेक्ट वाइज चीजें आपने कमिटीज को डिवाइड करी हैं. दैट इज वाई इट बिकम सो इम्पोर्टेंट. ये ऐसा क्यों है? नाउ यू हैव अ कमिटी अटैच टू अ डिपार्टमेंट, सब्जेक्ट और अ मिनिस्ट्री. It helps because you are then able to create specialization when there is a general problem of specialization. See, parliamentary oversight of administration is not an end in itself. आइडिया ये है कि आप इससे एफिशिएंसी बढ़ाओ और डिस्क्रेशन कम करो. अगर आप चाहते हैं कि DRSCs अच्छा काम करें, then there are certain things that you have to do, realizing what their importance is. इनका इंपॉर्टेंस क्या है? ये इन डेप्थ स्क्रूटनी करते हैं, पर्टिकुलर सेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, पार्लियामेंट का बर्डन कम कर सकते हैं बिकॉज दे कैन हैव द डिटेल्ड डिस्कशंस. एंड जो भी डिसीजंस मिनिस्ट्री लेती है, पॉलिसी एक्शंस लेती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में जो रूल्स बनाती है, वो जस्टिफाई यहां करने पड़ते हैं. इसको और बेहतर कैसे करें? जनरल इश्यूज तो हमको पता ही है. जो भी आपकी एक्सपेंडिचर एस्टिमेट प्लान्स हैं, इसकी प्री बजट स्क्रूटनी होनी चाहिए. प्री बजट स्क्रूटनी नहीं होती है. डिमांड फॉर ग्रांट जब आप हाउस पे डालते हो, DRSCs के साथ बैठ के तो DFGs बनती है, क्या उनको आप अच्छे से स्क्रूटनाइज करते हो? दूसरा, साइमल्टेनियस और रियल टाइम एग्जामिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट काम क्या कर रही है, in a non-partisan, cool sort of an atmosphere. उस परफॉर्मेंस को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से रिव्यू करना चाहिए, चाहे वो फाइनेंशियल इनपुट हो, चाहे वो इफेक्टिवनेस मेजर करने का तरीका हो. जो भी आपके इनसाइट्स निकले, वो इनसाइट्स बहुत क्लियरली कम्युनिकेट करो कि ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सॉल्व होगा. जो भी लॉज है उनको पीरियोडिकली रिव्यू करो. ये सुप्रीम कोर्ट भी कहती है. There is no mechanism to check whether a law is working well or not, except on a law commission which chooses its subjects very, very arbitrarily. And this can be a very good area to give great leadership training. चाहे ministers हो, state हो, senior officials हो, कोई भी हो. And amongst the members you can start developing specialization. Services में भी तो in-service training है, तो यहाँ क्यों नहीं हो सकती? And then you can look at specific arguments for financial committees. Public Accounts Committee is the cornerstone of financial parliamentary oversight, क्योंकि वो CAG एग्जामिन करता है, और क्योंकि वो CAG एग्जामिन करता है तो वो irregularities चेक कर सकता है जिसे उन्होंने किया है, CWG, कोलगेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एस्टिमेट्स कमेटी की सबसे खास बात है कि वो प्री एक्सपेंडिचर रिव्यू है. प्रॉब्लम यह है कि एस्टिमेट्स कमेटी में राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते, तो वो फेडरल एंगल कॉम्प्रोमाइज्ड होता है. और एस्टिमेट्स कमेटी चेक करते कि भाई जो आप पैसा खर्च करना चाह रहे हैं, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है. एंड देन यू हैव सम स्पेसिफिक केस स्टडीज जो आप लिख सकते हैं. जैसे ट्रांसपोर्ट की स्टैंडिंग कमेटी ने मोटर व्हीकल्स बिल पे बड़े अच्छे रिकमेंडेशंस दिए थे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने फ्लैग किया था, भाई डोकलाम में हम और अच्छे से प्रिपेयर हो सकते थे. Between 2011 to 2019, the Public Accounts Committee had 80% of the recommendations were accepted. पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने आपका CWG, कॉमनवेल्थ का स्कैम, डिफेंस, कोलगेट, इन सब में, कोलगेट में तो खैर इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड बिकॉज दे रिलाइड ऑन CAG's अंडरस्टैंडिंग ऑफ नोशनल लॉस. तो उस एग्जाम्पल को थोड़ा साइड ही रखे तो बेहतर है. एंड देन एस्टिमेट्स कमेटी वेरी क्लियरली फ्लैग्ड कि भाई आप यूरेनियम जो इंपोर्ट कर रहे हो उसमें थोड़ा ज्यादा ही डिपेंडेंट तो नहीं हो, आप डोमेस्टिक माइनिंग क्यों नहीं करते. And the same transport committee looked at a re-review of the Motor Vehicles Act and they came up with वो जो आपके daylight जो daylight daytime running lamps वाले जो recommendations है वो यहीं से आते हैं. And then you start giving some general solutions. Solutions क्या है भाई? Solutions है जैसे UK में होता है, मनी बिल को छोड़ के all bills are generally sent without fail, are generally sent to the parliamentary committees. Canada में generally क्या होता है? There's a parliamentary budget officer, PBO, whose job is to generally look at independent fiscal analysis. Germany generally
जर्मनी में तो इतनी खास बात है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज नॉट ओनली रिव्यू लेजिस्लेशन, समटाइम्स पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन ऑल्सो इनिशिएट लेजिस्लेशन। ये अगर आप एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में कमिटी के रिपोर्ट्स का मैंडेटरी डिस्कशन है। स्वीडन में मेंबर्स को हाई टेक पॉलिसी रूम्स मिलते हैं, प्रॉपर एक्सेस टू गवर्नमेंट डेटा मिलता है। पार्लियामेंट्री कमेटी की एफिशिएंसी किस चीज पर डिपेंडेंट है? पार्लियामेंट्री कमेटी की एफिशिएंसी 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। पहला तो कि आप मुझे इतना बताओ कि आपके मेंबर्स की क्वालिटी क्या है। दूसरा, मुझे ये बताओ कि गवर्नमेंट कितना विलिंग है आपको अपने एक पत्ते दिखाने में, कितना ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है। और तीसरा, कितनी ऑब्जेक्टिव और कितनी क्वालिटेटिव कमेटी की अपनी रिसर्च है। यही तो 3 चीजों से कमिटीज बेहतर होंगी ना। दूसरा, you should always have a minimum time slot for examining before a budgeted vote. ये सुभाष कश्यप ने किताब लिखी थी 2000 में, रिव्यूइंग द पार्लियामेंट। ये सुभाष कश्यप साहब की जनरली आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट इज वेरी फेमस, बट इन 2000 में रिटन रिव्यूइंग द पार्लियामेंट, उसमें उन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था, व्हाई डोंट वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो 100% पार्लियामेंट्री कमेटी के थ्रू जाने चाहिए, नॉट ओनली बिकॉज दे आर चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बट ऑल्सो बिकॉज दे विल हैव अ ग्रेट फेडरल बैलेंस। जो कमिटीज थोड़ी सी ओवरलैपिंग है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनको आप डीआरएससीज में ही मर्ज कर दो, क्रिएट सब कमिटीज फॉर देम। कुछ फंक्शनल रिफॉर्म्स, एमपीज की भी तो ट्रेनिंग होनी चाहिए कि कमेटी कैसे चलती है, आपका काम कैसा है। दूसरा, आपके पास एक प्रॉपर पार्लियामेंट्री कमेटी स्टाफ होना चाहिए, जो इस समय है नहीं, सब रोटेशन पे काम करते हैं, सेक्रेटेरिएट के लोग ही काम करते हैं। तीसरा, आपके पास कमिटीज की परफॉर्मेंस मेजर करने का भी एक प्रॉपर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होना चाहिए। चौथा, प्रोसीजरली जो भी मेजर कमेटी रिपोर्ट्स हैं उन पे फ्लोर डिस्कशन होना चाहिए, जो ऑस्ट्रेलिया में होता है। एक प्रॉपर कमेटी कैलेंडर होना चाहिए जो पार्लियामेंट्री सिटिंग्स के साथ अलाइन करे, कि 3 दिन अगर पार्लियामेंट का काम है तो 2 दिन कमेटी बैठ के उसके पार्लियामेंट के काम को रिव्यू करेगी। टेक्नोलॉजिकली यू शुड हैव ए प्रॉपर डैशबोर्ड सिस्टम, जो स्वीडन की मैं बात कर रहा था आपसे, ताकि आप गवर्नमेंट परफॉर्मेंसेस को रियल टाइम ट्रैक कर सको, नॉट जस्ट पब्लिक डैशबोर्ड्स बट गोइंग बियॉन्ड व्हाट इज ऑर्डिनरीली अवेलेबल। एंड यू शुड हैव डायरेक्ट सिटीजन फीडबैक इंटीग्रेटेड इनटू कमिटी रिफॉर्म्स। अब क्या कमिटीज के प्रोसीडिंग्स लाइव होने या नहीं चाहिए? उसका सिंपल आंसर ये कि सेंसिटिव चीजें लाइव ना हो, बाकी चीजें आप चाहो तो लाइव टेलीकास्ट कर सकते हो। कंक्लूजन में लिखेंगे, ओईसीडी हम करप्शन में बहुत, एंटी करप्शन में बहुत यूज करेंगे, ट्रांसपेरेंसी में बहुत यूज करेंगे। ओईसीडी की रिपोर्ट्स बहुत क्लियरली और बहुत कैटेगोरिकली कहती हैं दैट पार्लियामेंट्री कमिटीज जिस भी देश में होंगे, they will always have better governance indicators, lower budgetary leakages, and more informed legislation. So, reforming the committee system as we understand it to be, and please understand this, it's not an option, it is a democratic imperative. And अर्ज किया है, for in the invisible rooms of committee deliberation lies the real defense of our visible democracy. Isha. So now we've finished all the specific issues concerning the parliament. Parliamentary supremacy, cabinet system, electoral laws, reforms, ECI, इस सब को आगे जोड़ के we'll finish it in the next set of lectures. एक एक टॉपिक जो दूर तक लग सकता आएगा मैं करा रहा हूं, we'll make sure we finish it in time. थोड़ा सा आप सपोर्ट रखिए, एंड प्लीज अंडरस्टैंड एवरी वर्ड इज रिटन बाय मी, तो कई बार ये नॉलेज असिमुलेट करने में, ये 4 चीजें जोड़ने में टाइम लगता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने लीगल आते हैं, इट टेक्स मी दीज 3, मतलब मैं स्टाइल नहीं मार रहा हूं, इट जनरली टेक्स a total of these 3 volumes on law of elections by Justice Dobia to really go into the technical details of
कि भाई क्या प्रॉब्लम्स है। क्वेश्चन क्या आया यूपीएससी में? क्वेश्चन यूपीएससी में आया है इलेक्शन पिटिशन फाइल करना प्रोसीजरली कॉम्प्लेक्स क्यों है, डिस्क्वालिफिकेशन की रेमेडीज क्या है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में तो पहले करप्ट ऑफेंसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस, करप्ट प्रैक्टिसेस और इलेक्टोरल ऑफेंसेस का फर्क समझ लो। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इट। It's a so Representation of People's Act is a proper law class because you're reviewing a legislation. तो ये ध्यान रखना। अब तक तो हम looking at policy also, but that is something we have to always remember. Sorry. ठीक है, so I'll see you in the next class. Notes will be on the Telegram channel. और जो लोग पूछ रहे हैं कि सर ये नोट्स ब्लैक में है, आपने टेलीग्राम चैनल दिखा ही नहीं है, बिकॉज टेलीग्राम चैनल में जो नोट्स में डालता हूँ मैं वाइट बैकग्राउंड के साथ डालता हूँ ताकि आपको प्रिंट करने में आसानी रहे। कुछ लोगों ने पूछा है कि सर फॉन्ट बहुत छोटा है तो पढ़ने में दिक्कत हो रही, ताकि वो एक पेज में रहे। फॉन्ट साइज इज 10, इससे ना बड़ा होगा ना छोटा होगा। आप चाहें तो मैं आपको इसका एडिटेबल वर्जन दे देता हूँ, अपने आप फॉन्ट बढ़ा लीजिएगा, बट टू कीप इट इन कंसाइज 2 pages we're doing it in a certain manner. Thank you. I'll see you tomorrow. Bye bye.